हेलो व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति और जुडिशरी का रिश्ता हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि इलेक्शन रिजल्ट्स का ब्लेम किसी सीजीआई पर लगाया गया हो? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हम आपको आज के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे फॉर्मर सीजीआई पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने पर क्या राय रखते हैं। जुडिशरी हमेशा से चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए जानी जाती है, लेकिन जब रिटायर्ड जजेस एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं तो इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी पर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में कुछ प्रोमिनेंट उदाहरण हैं जहां रिटायर्ड जजेस ने एक्टिव पॉलिटिकल रोल्स अपनाए हैं। ये ट्रेंड विद टाइम एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया, क्योंकि जुडिशरी का काम राजनीति से परे रहकर न्याय करना होता है। पर क्या फॉर्मर सीजीआई के डिसीजंस खुद को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से बचा पाए हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को लगता है कि फॉर्मर सीजीआई के दिए गए डिसीजंस की वजह से उन्हें अब बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक बार फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर ओपिनियन जान लेते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या जजेस को रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनी आंसर विच आई गिव शुड नॉट be construed as casting an aspersion on judges who have gone before me. Jesse, there were some very distinguished judges, Justice K. Subbarao, who is one of the greatest judges of our time, who resigned from the Supreme Court to contest the presidential election. Yeah. Now, that was a call which Justice Subbarao took at that time, and I wouldn't want to be construed as expressing any form of disrespect to some of the greats of the past, merely based on a particular decision which they took. What I do believe, however, is this, that in everything, सेवानिवृत्ति के बाद, after retirement, समाज एक जज को, न्यायाधीश को हमेशा न्यायाधीश के रूप में ही देखती है. They never look at you. Now you will call me former Chief Justice of India, or Justice Sikri, former judge of the Supreme Court of India. But society continues to look at you as a judge even when you lay down office. Therefore, things which are all right for other citizens to do, society expects would not be all right for judges to do, even when they cease to be in office. Therefore, primarily, it is for every judge to take a call on whether a decision which I take after I retire will have a bearing on how people assess the work which I did as a judge. Right after you, for instance, cease to be a judge, if you join politics, that may give rise to a certain perception on the members of society on what was the extent to which the judicial work which was carried out by the judge was influenced by the politics which that judge adopted thereafter. Now, obviously, judges are also private citizens, and they are entitled to the same rights in a democratic society that a private citizen is entitled to. उन्होंने कहा कि सोसाइटी को जजेस से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसीलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जुडिशरी के अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए, जो उन्हें लगता है कि अब तक जुडिशरी में इवॉल्व नहीं हुआ है। जब इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, तो देखिए उन्होंने इस पर कैसे रिएक्ट किया। क्लैरिफिकेशन, तो मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले हैं। I think I've given you my answer. The most important thing I think is that, and I believe that you will find me doing that, I don't think I should be doing anything in my life after 65 which would cast any element of doubt, not only on the work which I did, but on the integrity of my system. Because I'm conscious of the fact that I've reached here because of this institution. No individual, आपने अच्छी बातें कही मेरे बारे में, but no individual rises above the institution. We are really tributaries which emanate from the source. So in whatever a former judge does and your behavior, whether in terms of what you do after retirement or your personal lifestyles, this must accord with the sense of faith which society has in your institution. Not just in your own work as a judge, but in how society perceives the institution of which you are a part. तो जहां एक और फॉर्मर सीजीआई ने अपने स्टांस को उनके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने पर क्लियर कर दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा भी हुआ जिसने उनके स्टैंड को हिलाकर रख दिया है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब जुडिशरी के किसी फैसले या उसके डिले का सीधा असर पॉलिटिकल इक्वेशंस पर पड़ता है तो सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप ने एक बार फिर से यही डिबेट को हाईलाइट किया कि क्या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल राजनीति की उथल पुथल में इनडायरेक्टली होता है। रीसेंट इवेंट्स, खासकर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 के कंटेक्स्ट में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं।
महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की हारी हुई इलेक्शन के बाद शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस पर उनका टाइमली डिसीजन न लेना उनकी हार का एक बड़ा कारण है। संजय राउत ने कहा, ही डीवाई चंद्रचूड़ हैज रिमूव्ड द फेयर ऑफ द लॉ फ्रॉम डिफेक्टर्स, हिज नेम विल बी रिटन इन द ब्लैक लेटर्स इन द हिस्ट्री। राउत ने ये आरोप लगाया कि शिवसेना के स्प्लिट के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस फाइल की गई थी उन पर टाइमली रूलिंग नहीं हुई। ये डिले एरिजली डिफेक्शंस को इनकरेज करता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का पॉलिटिक इक्वेशन बदल गया। उद्धव ठाकरे ने अपनी रैलीज में बार बार इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने दशहरा रैली के दौरान कहा था, इफ यू रियली वांट टू गो डाउन इन हिस्ट्री देन नाउ इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज स्टिल टाइम बिफोर यू रिटायर, सेव डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी, द होल नेशन इज लुकिंग अप टू यू। ठाकरे ने ये भी कहा कि फॉर्मर सीजीआई ने शिवसेना स्प्लिट के इशू पर जो फैसला नहीं दिया उसका सीधा असर डेमोक्रेसी पर पड़ा है। ये एक अपील थी जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी और टाइम बाउंड डिसीजंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। 2022 में शिवसेना स्प्लिट होने के बाद उद्धव ठाकरे फैक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये केस महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नरवेकर के पास भेज दिया। नरवेकर ने शिंदे फैक्शन के फेवर में रूलिंग दी, जो उद्धव ठाकरे फैक्शन के लिए एक बड़ा सेटबैक थी। संजय राउत का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली डिसीजन लिया होता तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सिचुएशन अलग होती। He said, delay in ruling on the disqualification petition by Shiv Sena UBT caused our defeat. Had he given a timely verdict, the scenario in the Maharashtra would have been different. आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी अलायंस शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी को इलेक्शन में ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं। शिवसेना यूबीटी सिर्फ 20 सीटों से जीत पाई है, जबकि कांग्रेस ने 16 और शरद पवार फैक्शन ने सिर्फ 10 सीटें जीती हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में महायुति अलायंस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। संजय राउत ने कहा, The RSS helped the Mayayuti win the election. They went door to door driving venomous campaigns. This impacted us. राउत ने ये भी आरोप लगाया कि इलेक्शन रिजल्ट्स प्री डिटरमाइंड थे और आरएसएस ने घर घर जाकर पॉइजनस कैंपेन चलाए हैं। इलेक्शन के बाद संजय राउत ने फॉर्मर सीजीआई पर एक स्पैटिंग अटैक किया। He said he DY Chandrachud has kept the doors and windows open for defection. By not deciding on the disqualification petitions, he removed the fear of the law from defectors. ये स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि जुडिशरी के डिले का असर सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिक और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। हालांकि जैसा हमने क्लिप्स में सुना, फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इवेंट में कहा है, Our society sees former judges as the guardians of the law. Their lifestyle should be in accordance with the legal system of the society. ये बयान जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अपहोल्ड करने की जरूरत पर फोकस करता है। चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग और प्रेशर ग्रुप्स के इफेक्ट को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स having special interest in a case try to influence the result of that case through social media. Judges need to be cautious of them. फॉर्मर सीजीआई ने एक बार कहा था, पॉलिसी मेकिंग इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर बट इट इज द जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स टू डिसाइड इट्स वैलिडिटी। उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने डिसीजन से डेमोक्रेसी का बैलेंस बनाए रखना होगा। रिटायरमेंट के बाद इवेंट में चंद्रचूड़ ने कहा है, फॉर 24 years I had no other work except waking up in the morning, reading case files, going to court and dictating judgments. Living a life of a private citizen feels very good. ये बयान एक रिटायर्ड जज की प्राइवेट सिटीजन बनने के एक्सपीरियंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उन्होंने जुडिशरी के रोल और अकाउंटेबिलिटी पर भी फोकस किया। पर इतनी क्लैरिफिकेशन के बाद भी क्या फॉर्मर सीजीआई लोगों की नजरों में सही है? इलेक्शन के नतीजे आने के बाद राउत ने कहा, वी आर सैड बट नॉट डिसअपॉइंटेड, वी विल नॉट लीव द फाइट इनकम्प्लीट। राउत का मानना है कि वोट डिवीजन और पॉइजनस कैंपेन्स ने एमवीए को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी पैसा पावर को इग्नोर करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का ये एपिसोड जुडिशरी की डिलेज और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बीच में एक थिन लाइन को हाईलाइट करता है, जहां एक तरफ जुडिशरी का काम इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करना है, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज इस इम्पार्शियलिटी को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्वेश्चन करती हैं। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का टेन्योर जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का एक उदाहरण है। आपको इस केस में क्या लगता है? क्या महाराष्ट्र में आए नतीजे फॉर्मर सीजीआई के डिसीजंस के कारण है या फिर कुछ और? कीप शेयरिंग योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।